meiosis 1, हेडिंग लिखिए meiosis 1, सब हेडिंग लिखिए प्रोफेज 1। जो प्रोफेज 1 होता है ना, इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ meiosis, ओके, and it is most complex stage of meiosis. It is further divided into 5 different substages, that is leptotene, zygotene, pachytene, diplotin and dikinesis. मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है, प्रोफेज 1 से। देख लेना, प्रीवियस ईयर आपको दिख जाएगा। राइट ऑन। प्रोफेज 1 इज longest, prophase 1 is longest and most complex phase of meiosis. It is further divided into 5 different substages. First two stage, that is leptotene and zygotene is of short duration. First two stage, that is leptotene and zygotene, is of short duration, whereas diplotene is longest, and it can last for year or months. Diplotene is longest and it can last for years or months. ठीक है? हाँ। फर्स्ट लिखिए लेप्टोटीन। इससे पहले एक चीज समझ लीजिए, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। हम मान लीजिए कोई सेल लेके चल रहे हैं जिसमें 4 क्रोमोसोम है, वेयर 2n इज इक्वल टू 4, ठीक है, हम उसमें मियोसिस को स्टडी कर रहे हैं। तो ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसमें से जो 2 क्रोमोसोम है वो मदर साइड से आया, तो हम उसको रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2 क्रोमोसोम जो है वो फादर साइड से आया, क्या हो गया, उसको हम लोग येलो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये होमोलोगस पेयर है, ओके, ताकि समझने में आसानी हो। रडन लेप्टोटीन, during this compaction means condensation, compaction of chromatin fiber takes place, and they get attached to nuclear envelope, and because of this it gives appearance of floral
बुके, and that's why it is also referred as bouquet stage. Floral bouquet, and that's why it is also known as bouquet stage. गुलदस्ता के जैसा दिखता है कि अटैच होने के बाद एक ऑर्गेनाइज मैनर में दिखेगा आपको, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट बुके स्टेज. ठीक है, जल्दी से बना लीजिए इसको. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जाइगोटीन. ठीक है, जाइगोटीन में क्या होता है कि देयर इज पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, वी कॉल दिस पेयरिंग साइनेप्सिस. और ये जो पेयरिंग होता है जाइगोटीन में, इट इज विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स नोन एज synaptonymal complex. ठीक है, and that results in formation of bivalent or tetrad. This tetrad becomes more visible in next stage, that is in Pectine. बन तो यहां जाता है tetrad, बट यहां पे क्लियरली विजिबल नहीं होता है. विजिबल कब होता है? नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज Pectine. ठीक है, डन. During this pairing between homologous chromosome takes place. Pairing between homologous chromosome takes place. This pairing is with the help of a proteinaceous complex. This pairing is with the help of a proteinaceous complex known as synaptonymal complex. Synaptonymal complex. This pairing is referred as synapsis. This pairing is referred as synapsis. As a result, there is formation of bivalent or tetrad, which is more clearly visible, during next stage, during next stage. बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए. बन गया. नेक्स्ट हमारा आता है पैकेटीन. तो पैकेटीन में क्या होगा? नाउ टेट्राड्स आर क्लियरली विजिबल,
and there is crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosome. This crossing over is mediated by an enzyme recombinase. अब मान लो ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इन दोनों के बीच में ऐसे क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है। अगर मान लो ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस ओवर करेंगे वहां पे थिकनेस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। राइट डाउन। नाउ टेट्राड्स आर क्लियरली विजिबल, नाउ tetrads are clearly visible. There is crossing over between, there is crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosome, non-sister chromatids of homologous chromosome it is an enzyme mediated process, it is an enzyme mediated process and the enzyme involved is recombinase. Enzyme involved is recombinase, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, there is formation of recombination nodule. There is formation of recombination nodule, ठीक है। जैसे डायग्राम बना लीजिए। वंदना, मैंने क्या कहा कि नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। ये जो प्रोसेस है ये क्रॉसिंग ओवर का, ये एंजाइम के हेल्प से होता है, दैट इज रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और जहां पे ये क्रॉसिंग ओवर होगा वहां पे एक नोड्यूल टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज रिफर्ड एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। मैंने यही बताया, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है, दैट इज डिप्लोटीन। तो ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे के पास क्यों आया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ही ना पेयरिंग कर रहा है। अब ये जो पेयरिंग करवा रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अगर मान लो ये डिसॉल्व हो गया तो जो साथ में था वो अलग होना शुरू होगा। तो डिप्लोटीन स्टार्ट जैसे होता है वैसे ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ डिप्लोटीन इज मार्क्ड बाय कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, व्हाट विल हैपन? दीज होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो जब मूव करेगा अवे तो ऐसे करके ऐसे क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, एंड दैट क्रॉस टाइप स्ट्रक्चर इज रिफर्ड एज chiasmata। और ये जो डिप्लोटीन है, इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1। oocytes में इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और years, ओके। राइट डाउन। onset of diplotene is marked by complete dissolution of synaptonymal complex as a result homologous chromosome
moves away from one another. As a result, homologous chromosome moves away from one another, which results in formation of cross-shaped structure known as chiasmata. ठीक है, this is longest phase of prophase 1. This is longest phase of prophase 1. And in case of oocyte, it is longest phase of prophase 1. And in case of oocyte, it can last for months or years. In case of oocyte, it can last for months or years. ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए डायकाइनेसिस। ये बना लीजिए। अब हो गया जो homologous pair of chromosome है, they move further away from one another. ठीक है, एक दूसरे से और दूर जाएगा। ठीक है, तो जो क्रॉस सेव स्ट्रक्चर था वो एंड की तरफ मूव करेगा। जो क्यास्मा बना था, जब क्रोमोसोम और जाएगा तो क्रॉस सेव स्ट्रक्चर जो है एंड की तरफ मूव करेगा, एंड दैट इज रिफर्ड एज टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्यास्माटा। ठीक है, प्लस आप देखोगे तो इट फॉर्म्स एन आई शेप्ड स्ट्रक्चर, आंख की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। ये बॉर्डर देखोगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आई शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहां पे क्या होगा डायकाइनेसिस में, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप विल टेक प्लेस। ठीक है, स्पिंडल apparatus will organize itself. ठीक है, न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनेली विल disappear. This stage is also referred as transition to metaphase. जब हम लोगों ने माइटोसिस में ट्रांजिशन टू मेटाफेज पढ़ा था, वो इसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन टू मेटाफेज कहते हैं, डायकाइनेसिस को। ठीक है, write down डायकाइनेसिस as homologous pair of chromosome moves further away from one another, there is terminalization of chiasmata. And formation of an I-shaped structure. I-shaped structure. ठीक है, नेक्स्ट वन लिखिए। न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट, ठीक, नेक्स्ट वन लिखिए। न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनली disappear. Nucleolus and cell organelle disappear. ठीक है, नेक्स्ट spindle apparatus organizes itself
spindle apparatus organizes itself and spindle apparatus organizes itself and नहीं बस ठीक है and sorry हाँ लिखिए and this phase is also referred as transition to metaphase. Next हमारा is metaphase 1. नेक्स्ट इज मेटाफेज 1. तो मेटाफेज 1 में क्या होगा कि जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है दे विल अरेंज देमसेल्फ एट इक्वेटोरियल प्लेट. यहाँ पे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जबकि मेटाफेज में हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट. यहाँ पे इट इज होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम व्हिच विल अरेंज देमसेल्फ एट इक्वेटोरियल प्लेट. पहला चीज, जब आप इक्वेटोरियल प्लेट को देखोगे तो आपको दो प्लेट विजिबल होगा क्योंकि पेयर में है ना, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे. तो मैं क्या कह रहा हूं देखो, जैसे ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ऐसा नहीं है कि एक साइड दोनों कलर एक ही साइड होगा, ऑपोजिट भी हो सकता हो, बना दिया ऐसा मैंने. तो अब वो क्या दिखेगा कि ना होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट एंड टू प्लेट्स आर विजिबल. एक येलो वाला प्लेट आपको दिख रहा है, एक रेड वाला प्लेट दिख रहा है, या ऊपर नीचे भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है. ठीक है, थर्ड ऑन मेटाफेज 1. ड्यूरिंग दिस homologous pair of chromosome arrange themselves at equatorial plate and two plates are clearly visible. Two plates are clearly visible. ठीक है, डायग्राम जल्दी से बना लो. ठीक है, ये जो नेक्स्ट वाला फेज है ना, एनाफेज 1, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा सा समझना. अब क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एनाफेज 1 इज मार्क्ड बाय सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. क्रोमैटिड्स नहीं सेपरेट हो रहे. माइटोसिस में इट इज सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स. इन मियोसिस एनाफेज 1 इट इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये येलो वाला इधर गया और रेड वाला इधर आया, बट देयर विल बी आल्सो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है. तो अब कुछ ऐसा दिखेगा. तो ऊपर वाला अगर हम देखें तो ठीक है, तो साथ के साथ ये जो अपना नॉन सिस्टर कमिटेड था उसका भी कुछ पार्ट चल के नहीं रहा मार्केट. ठीक है, ये लेके आएगा, ये भी अपने साथ कुछ नॉन सिस्टर कमिटेड का पार्ट लेके आएगा. ठीक है, ऐसे ही आपको इधर भी अगर देखेंगे इधर भी क्या हो रहा है, कुछ नॉन सिस्टर कमिटेड का पार्ट इधर भी आ जाएगा. ठीक है,
अब यहाँ पे जो समझने का चीज है वो आपको अगर याद होगा तो जब हम भी सेल डिवीजन की बात करते हैं तो हम किसी डिप्लॉयड सेल में अगर मियोसिस करवा रहे हैं, हैप्लॉयड में तो मियोसिस नहीं हो सकता, डिप्लॉयड सेल में करा रहे हैं तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और डीएनए कंटेंट 2c है, यही है ना। और फिर ये एस फेज को पार करता है, जब एस फेज को पार करता है तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है बट अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है 4c हो जाता है ना। अब यहाँ पे देखो, जब हम एनाफेज 1 में आते हैं तो इधर कितने क्रोमोसोम गए? 2। इधर कितने क्रोमोसोम गए? 2। तो इधर n गया, इधर भी n गया, ठीक है। डीएनए इधर कितना गया? 2c। और इधर कितना आया? 2c। समझ में आ रहा है सबको ये? तो जो एक्चुअल रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है वो एनाफेज 1 में होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेज होल प्रोसेस इज रिफर्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। ये पॉइंट क्लियर है सबको? फिर से समझ लो, मैंने क्या कहा कि मैं एक डिप्लॉयड सेल लेके चल रहा हूं जिसमें 2n 2c है, ठीक है। एस फेज को पार किया, 2n 4c हो गया, ठीक है। अब एनाफेज में क्या हो रहा है कि 2 क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जा रहा है, 2 क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो गया? हाफ हो गया, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? उतना ही है जितना पेरेंट सेल में था। तो एनाफेज इज अ स्टेज ऑफ meiosis when the number of chromosome becomes half with respect to the parent cell. That means the actual reduction in number of chromosome takes place during this stage, and because of this stage the whole process is referred as reduction division. क्योंकि डीएनए के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा पेरेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट सबको? ये हाँ भाई, इधर जनता समझ में आया सब? ओके, तो राइट डाउन। Onset of anaphase 1 is marked by separation of homologous chromosome, This is the stage of meiosis. This is the stage of meiosis where actual reduction in number of chromosome takes place. This is the stage of meiosis where actual reduction in number of chromosome takes place, okay? And because of this stage, the whole process is referred as reduction division. ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए। नेक्स्ट इज टेलोफेज 1। नेक्स्ट इज टेलोफेज 1। ठीक है, तो क्या होगा टेलोफेज 1 में? स्पिंडल एपरेटस हमारा डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम विल टेक प्लेस and the level of discondensation in telophase 1 is less than what is at interphase. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि टेलोफेज 1 में जो डिकंडेंसेशन होता है वो उतना नहीं होता जितना इंटरफेज क्रोमोसोम का होता है, ठीक है। देन
reformation of nuclear envelope will take place and cell organelle will reappear and there is formation of dyad, DYAD, क्योंकि कैरोकाइनेसिस हो जाएगा, उसका साइटोकाइनेसिस होगा तो डायड बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा डाउन टेलोफेज 1। complete disintegration of spindle apparatus takes place. Chromosome undergoes decondensation. And the level of decondensation is less than what is present at interphase. Level of decondensation is less than what is present at interphase. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लिखिए। Reformation of nuclear envelope takes place. Reformation of nuclear envelope takes place. Nucleolus and cell organelle reappear. Nucleolus and cell organelle reappear. Next one. At this stage, cell is referred as dyad. At this stage, cell is referred as dyad, DYAD. Cell is referred as dyad. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। Meiosis 2. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, Meiosis 2. हाँ हाँ ठीक, Meiosis 2. Meiosis 2 is similar to, हाँ बना लो, कोई ना पूछो। हाँ में जब 2n से n होगा हाँ, तो डुप्लीकेशन की जरूरत क्या पड़ेगी? किस चीज की डुप्लीकेशन? वो तो बिना उसके 4 सेल बनाना है ना भाई, 4 सेल बनाना है। हाँ? 4 की जगह 2 बन गए तो क्या होगा, मतलब नहीं समझा। हमने डुप्लीकेशन करवाया था तो उसमें डुप्लीकेशन ना करवा के डायरेक्ट ही हम इधर कर देते। सेल डिवीजन की क्या जरूरत है फिर? नहीं करवाते हम, कुछ सेल बॉडी में हैप्लॉइड रख लेते हैं, कुछ डिप्लॉइड रख लेते हैं। जो गिमिट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं डिप्लॉइड होते हैं। अब डिप्लॉइड में तुम कैसे करोगे? तुम अगर सेल साइकिल क्रॉस कराओगे तो डीएनए कंटेंट तो दोगुना होगा ही होगा। एक प्रोसेस है, उसमें तुम बाई ऐसा थोड़ा ना कि तुम पिक एंड चूज कर लोगे कि ये हम करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। और जो भी प्रोसेस है, जो भी हुआ है, वो इवोल्यूशन के कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में हुआ है, तो उसको सारा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया गया होगा और देखा गया कि बेस्ट सूटेड कौन सा प्रोसेस है, उसको सिस्टम ने अडॉप्ट कर लिया होगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज meiosis 2. Meiosis 2 is exactly similar to mitosis. Meiosis 2 is exactly similar to mitosis. तो मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा, प्रोफेज 2, प्रोफेज मेटाफेज 2 और है ना, जो इसमें एक दो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पहला चीज, मेटाफेज 1 में हम लोग कहते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ एट इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, मेटाफेज 2 में हम लोग क्या कहेंगे?
क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ एट इक्विटोरियल प्लेट। अगर हम ये मेटाफेज 2 का अगर हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा कि आपका जो क्रोमोसोम है वो कहां पे अरेंज हो गया, इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर तो आधा वहां पे हो गया, 4 से 2 हो गया, ठीक है। अब एनाफेज अगर हम 2 में जाएं, तो एनाफेज 2 में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर विल टेक प्लेस, जो एनाफेज में होता है। एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, कहते हैं ऑनसेट ऑफ एनाफेज इज मार्क्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर माइटोसिस में। तो यहां पे भी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर होगा, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा कि सिस्टर क्रोमेटिड विल सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। अब देखो यहां पे हमारा क्या था, N और 2C, N और 2C है, इधर कितना क्रोमोसोम गया, 2, इधर N गया, इधर भी कितना आया N, और डीएनए का अमाउंट कितना गया, इधर C, इधर C। दैट मींस एनाफेज 2 is the stage of meiosis when the amount of DNA becomes half with respect to parent cell। समझ आया पॉइंट। अच्छा रेड पेन यूज ना करो, दिखता नहीं क्या बोर्ड में रेड पेन, कोई बात नहीं करूंगा आगे से। ये पॉइंट समझ में आया सबको। मैंने आपको क्या बताया कि एनाफेज 1 में हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहा है, बट अमाउंट ऑफ डीएनए कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एनाफेज 2 में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो n हो चुका, अब n/2 तो होगा नहीं, बट द अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स हाफ विथ रिस्पेक्ट टू द पैरेंट सेल। समझ में आया ये पॉइंट सबको। हाँ भाई इधर भाई लोग, ठीक है, तो डन, खाली एक पॉइंट लिख लीजिए, इट इज द एनाफेज 2 ऑफ meiosis 2, it is the anaphase 2 of meiosis 2 during which amount of DNA becomes half, amount of DNA becomes half with respect to parent cell, amount of DNA becomes half with respect to parent cell, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis। खत्म हो गया meiosis 2 में कुछ नहीं है, बस ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबसे जो हमारे मतलब का है। एक तो मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज होता है मेटाफेज 2 में, और आधा हो जाता है अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis। फर्स्ट अब बताया कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर मान लो meiosis नहीं होता तो एग में 46 होते और स्पर्म में 46 होते, नेक्स्ट जनरेशन में 92 क्रोमोसोम हो जाता, उसके अगले में 184, उसके आगे फिर 368, इस तरीके से क्रोमोसोम बढ़ता जाता। लेकिन बिकॉज ऑफ meiosis it helps in maintaining constant chromosome number from one generation to another in sexually reproducing organism। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है meiosis का। राइट ऑन meiosis फर्स्ट सिग्निफिकेंस लिखिए, it helps in maintaining constant chromosome number, it helps in maintaining constant chromosome number in sexually reproducing organism
It helps in maintaining constant chromosome number in sexually reproducing organism from one generation to another. From one generation to another. ठीक है, लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए, ये हो गया, अगला लिखिए। हमें पता है कि ड्यूरिंग meiosis there is genetic recombination and that leads to variation and which is essential for evolution. भैया ऑप्शन रहेगा तभी तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करेगा, सब एक ही जैसा होगा, वेरिएशन होगा ही नहीं, तो नेचुरल सिलेक्शन किसको सेलेक्ट करेगा, किसको रिजेक्ट करेगा? डन। ड्यूरिंग meiosis there is genetic recombination. During meiosis there is genetic recombination which leads to variation, and it is essential for evolution. ठीक है, इतना ही अपना सिग्निफिकेंस है। एक और पॉइंट लिखना था, लिख लो। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गमीट इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गमीट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। लिख लिया? नेक्स्ट, जैसे माइटोसिस से क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल वाले जो 2-4 फर्जी बताए थे, वैसे ही मियोसिस में भी 2-4 आता है। एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी meiotic division is required? How many meiotic division is required? Meiosis, meiotic division. How many meiotic division is required to produce 100 pollen grains? आंसर लिख लीजिए। Number of meiosis required to produce n number of pollen grain is n/4. Number of meiosis required to produce n number of pollen grain is n/4. ठीक है, अगले क्वेश्चन लिखिए। How many meiosis is required? How many meiosis is required to produce 100 embryo sac? 100 भैया, मेगास्पोर मदर सेल होता है, meiosis होता है, मेगास्पोर टेट्राड बनता है, 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है, तो n के लिए n। सर हाँ, क्या हो गया पूछो? एक कहाँ पहले था? वो तो मेगास्पोर मदर सेल होता है भाई, मेगास्पोर से मेगास्पोर थोड़ा ना बनता है। हाँ, cell of Nicellus which is located towards the micropallar end increases in size, becomes densely cytoplasmic with large size nucleus. याद आया कुछ? मुझे सब रटा हुआ, चिंता मत करो। ओके, डन। Number of meiosis, आंसर लिखिए। Number of meiosis required to produce n number of embryo sac is n. Number of meiosis required to produce n number of embryo sac is n. अगला क्वेश्चन लिखिए। How many meiosis is required? How many meiosis is required to produce 100 seed or grain? How many meiosis is required to produce 100 seeds or grains? Okay, so आंसर लिख लीजिए।
To produce n number of seed or grain, n plus n by 4 meiosis is required. To produce n number of grain or seed, n plus n by 4 meiosis is required. ठीक है, एक अगला क्वेश्चन लिखिए। n इम्ब्रोसैक के लिए और n by 4 पॉलन ग्रेन के लिए, तभी तो बनेगा सीड, नहीं फर्टिलाइजेशन होना है ना। ठीक है, राइट ऑन। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी meiosis is required to produce 200 seeds in members of family Cyperaceae? How many meiosis is required to produce 200 seeds in members of family Cyperaceae? यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है वो समझ लो, ऐसे आपको पूछा नहीं जाएगा, एक आध बार कभी पूछा गया, इसलिए बता दे रहा हूँ। साइपरेसी में क्या होता है कि पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ, ठीक है, और उस मियोसिस के रिजल्ट से 4 पॉलन ग्रेन बने, उसमें से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे, तो एक ही फंक्शनल रहेगा। तो मैंने जैसा इम्ब्रोसैक का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे ही पॉलन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो लिख लीजिए, इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ साइपरेसी, in case of members of family Cyperaceae, out of the 4 pollen grain produced, out of the 4 pollen grain produced, 3 degenerates, 3 degenerates, and only 1 remains functional. So answer is n plus n. ठीक है, समझ में आया सबको? एक लास्ट फर्जी क्वेश्चन लिख लीजिए। What is the minimum number of meiosis? What is the minimum number of meiosis required? What is the minimum number of meiosis required to produce 10 seeds? What is the minimum number of meiosis required to produce 10 seeds? 13. 10 हमें इम्ब्रोसैक के लिए चाहिए और 10 पॉलन ग्रेन के लिए कम से कम 3 मियोसिस तो होना चाहिए। फ्रैक्शन में मियोसिस नहीं होगा, इसकी 2.5 फ्रैक्शन में कभी आंसर नहीं है, मियोसिस तो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 3 पॉलन ग्रेन के लिए और 10 इम्ब्रोसैक के लिए, 10 + 3 13। समझ में आया सबको? ये इधर भाई समझ में आया सबको? रजनीश तो पहले से ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? 10 इम्ब्रोसैक के लिए और 12 पॉलन ग्रेन बनेगा, 3 मियोसिस में 10 यूटिलाइज हो जाएगा, 2 वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज नेक्स्ट चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अगर हम इस यूनिट को देखें, प्लांट फिजियोलॉजी को, तो बहुत ज्यादा वेटेज कैरी नहीं करता। ठीक है, 5 चैप्टर हैं, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन, कभी 8, कभी 10 भी आया, 12 भी आया। लेकिन इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? इस यूनिट से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो। आज के समय में तो नहीं बन रहा, लेकिन पुराना पेपर आप उठा के देखोगे तो फिजियोलॉजी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स कम है इसमें, ज्यादा कंसेप्ट ज्यादा है। ठीक है, फैक्ट्स हैं इसमें भी, लेकिन कंसेप्ट ज्यादा है। अगर आपको समझ में आ गया तो
आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है? प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट में मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट में फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट में पीजीआर का ट्रांसपोर्ट होता है। दीज सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट बॉडी। अगर हम इस ट्रांसपोर्ट को देखें, ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, दिस ट्रांसपोर्ट कैन बी फॉर शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्ट है इट कैन बी फॉर शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैन टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, और बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से। एंड इफ इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देन इट कैन बी असिस्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें, सो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वी हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है उसका कुछ डायरेक्शन भी होगा, होगा ना डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि रैंडम हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? अगर हम जाइलम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इट इज स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। तो जाइलम से क्या मूव कर रहा है? वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट, ठीक है। अगर हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज मल्टी डायरेक्शनल, दैट इज हियर सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। सोर्स सिंक समझते हो? जैसे आपके पेरेंट्स कमाते हैं, वो सोर्स है, आप पे खर्च हो रहा है, आप लोग क्या हो? सिंक हो, ठीक है। एंड दिस रिलेशनशिप इज रिवर्सिबल। हाउ? अभी वो कमा रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, कल वो ओल्ड हो जाएंगे, आप कमाओगे, आप उनका ध्यान रखोगे। तो प्लांट में भी ऐसा ही है, जब लीफ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना बना रहा है, सब पार्ट को दे रहा है इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन, और जब कंडीशन अनफेवरेबल हो गया तो सब प्लांट पार्ट को ये स्टोरेज ऑर्गन देगा इंक्लूडिंग डेवलपिंग लीफ, ठीक है। तो ये सोर्स सिंक रिलेशनशिप जो है रिवर्सिबल है एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। पीजीआर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो जैसे ऑक्सीजन है, तो जैसे मान लो ये प्लांट है, ये सूट अपेक्स है और ये रूट अपेक्स है, ठीक है। दोनों जगह ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है, बट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसाइज एट सूट अपेक्स इज फार ग्रेटर देन व्हाट इज सिंथेसाइज एट रूट अपेक्स, ठीक है। एंड द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज स्ट्रिक्टली पोलर फ्रॉम वन पोल टू अनदर, ठीक है। समझ में आया? ओके, नाउ थ्रो डाउन। अच्छा, इसमें एक चीज और है, उसको समझ लो फिर लिखना कि मिनरल ट्रांसपोर्ट जो हमने कहा जाइलम के थ्रू होता है, और हमने कहा इट इज स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल। बट अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि द ओवरऑल ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट विद इन द प्लांट बॉडी, इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, इट इज बायडायरेक्शनल। हाउ? फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स वाया जाइलम, जाइलम के थ्रू सब पार्ट में चला गया, बट एट द टाइम ऑफ सेनेसेंस, ओके, बट एट द टाइम ऑफ सेनेसेंस, जब सेनेसेंस हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, प्लांट अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है, तो वो न्यूट्रिएंट जिसको वो रिमोबिलाइज कर सकता है वापस अपने बॉडी में ले लेता है। देखते हैं ना, लीफ का कलर चेंज हो जाता है, येलोइश हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो भी सब्सटेंस उनको प्लांट ब्रेक करता है और उनको विड्रॉ करता है, जिनको जिनको विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ सेनेसेंस मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर रिमोबिलाइज्ड एंड दिस रिमोबिलाइजेशन टेक्स प्लेस वाया फ्लोएम, जाइलम के थ्रू नहीं होता है, क्योंकि जाइलम तो स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहा है, तो वो तो वापस आने नहीं देगा। तो जो रिमोबिलाइजेशन होगा इट इज ऑलवेज थ्रू फ्लोएम। तो मिनरल न्यूट्रिएंट का जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट इज स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल, बट ओवरऑल ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट इज बायडायरेक्शनल, ठीक है। राइट डाउन। within plant body within plant body transport of within plant body transport of water, mineral, organic food, PGR. PGR is plant growth regulator. PGR, etc. takes place. Etc. takes place. These transport can be for short distance or long distance. These transport can be for short distance or long distance. Next one लिखिए।
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट can take place by simple diffusion, can take place by simple diffusion or by cytoplasmic streaming or by cytoplasmic streaming. And if it is against the concentration gradient, if it is against the concentration gradient, it is assisted by active transport. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला लिखिए, for long distance transport, specialized structure, xylem and phloem is present. Specialized structure, xylem and phloem is present. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, transport of water and mineral, via xylem, is strictly unidirectional, that is from soil to different plant parts, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, phloem transport is multidirectional. That is, here source and sink relationship depends upon prevailing environmental condition, that is, when conditions are favorable, from leaf to different plant parts, including storage organ, ठीक है, and when conditions are unfavorable,
from storage organ to different plant parts, from storage organ to different plant parts, including developing leaf, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ओके, अगला लिखिए, ठीक है, transport of PGR such as oxygen, transport of PGR, that is plant growth regulator, PGR, such as oxygen, is strictly polar, 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 that is from root apex to shoot apex. Sorry, from shoot apex to root apex. Sorry. Clear? Now, ready? Next one, लिखिए. Overall transport of mineral nutrient. Overall transport of mineral nutrient within the plant body. Overall transport of mineral nutrient within the plant body is bidirectional. Overall transport of mineral nutrient within the plant body is bidirectional. That is from soil to different plant part via xylem. That is from soil to different plant part via xylem. And at the time of senescence, from plant part undergoing senescence, to main plant body, via phloem. Next heading लिखिए, types of transport. Next heading लिखिए, types of transport. हम ट्रांसपोर्ट को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज पैसिव एंड एक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर एनर्जी इज रिक्वायर्ड और नॉट. पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन एंड facilitated diffusion. Right on. Transport is broadly divided into two different types. Transport is broadly divided into two different types on the basis of whether energy is required or not during the process of transport. Transport is broadly divided into two different types on the basis of whether
energy is required or not during transport. If energy is not required, it is known as passive transport. And if energy is required, then it is known as active transport. Okay. Okay. Next point. Passive transport is further divided into two different types. Passive transport is further divided into two different types. That is simple diffusion and facilitated diffusion. Simple diffusion and facilitated diffusion. First, write down simple diffusion. Okay. Simple diffusion होता क्या है? It is movement of substance from region of its higher concentration to region of lower concentration. ठीक है? तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मैनर में मूव करता है, moves in random fashion. ठीक है? And along the concentration gradient, it will move. It is not dependent upon the presence of living system, and it is a slow process. ठीक है? Then ये जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है, इट इज द मेन पाथवे ऑफ गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स. जितना भी प्लांट में आप गैस एक्सचेंज देखते हो, CO2, O2, जो भी गैस एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, डिफ्यूजन. इट इज ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में इससे हो सकता है. ठीक है. 3 फेजेस होते हैं मैटर के, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, या गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. तो हम कहते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज पॉसिबल, into the solid is possible, of the solid is not possible. मैंने गैस और लिक्विड डिफ्यूज कर सकते हैं. ठीक है. सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं हो सकता, बट सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है. क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, तो वहां से मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर सकता. बट आपने पढ़ा होगा लैटिस स्पेस होता है, उसमें आके मॉलिक्यूल ये हो सकता है. ठीक है. स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल, faster will be the rate of diffusion. Graham's law आपने पढ़ा होगा. ठीक है. If two things are diffusing together, then the rate of diffusion of one will be independent of another. मतलब क्या हुआ? किसी ने यहाँ पे जूता खोला और किसी ने डीओ स्प्रे किया, आपको दोनों की फीलिंग आएगी. ठीक है. समझ में आया? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन. ठीक है. प्लस प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल इंक्रीज. थ्रो डाउन डिफ्यूजन. It is movement of substance. It is movement of substance from region of its higher concentration, from region of its higher concentration to region of its lower concentration. That is along the concentration gradient. That is along the concentration gradient. Next one. During diffusion, molecules move in random fashion. During diffusion, molecules move in random fashion. Next one. It is a slow process. It is a slow process and not dependent upon
It is a slow process and not dependent upon presence of living system. ठीक, next one. It is major pathway of gases exchange. It is major pathway of gases exchange in power plant. और major means of लिखिए. It is major means of gases exchange in plant. Next one लिखिए. Diffusion of gases and liquid is possible. Diffusion of gases and liquid is possible. Into the solid is possible. Into the solid is possible. मेच्योर की बात क्या बोला? मेच्योर तो मैंने यूज भी नहीं किया. मेजर मीन्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज बोला था इन प्लांट. ठीक है, क्या लिखा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज पॉसिबल ऑफ द सॉलिड. इनटू द सॉलिड इज पॉसिबल. ऑफ द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल. इनटू द सॉलिड इज पॉसिबल. ऑफ द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. If two things are diffusing together, if two things are diffusing together, then a rate of diffusion of one will be independent of another. If two things are diffusing together, then a rate of diffusion of one will be independent of another. Next. Smaller the size of particle, faster will be the rate of diffusion. Smaller the size of particle, faster will be the rate of diffusion. ठीक है, next point. Rate of diffusion is affected by concentration, temperature and pressure. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. हाँ, क्या बेटा? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन. टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन भूमिका. किसी ये बात कोई नहीं है, जैसे भी लिखना वैसे लिख लो. टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. देखो, वो डिफ्यूजन आया मतलब इट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पैसिव प्रोसेस. हमें पता है कि वी हैव biological membrane which acts as a barrier. So those substances which are soluble in lipid bilayer can diffuse freely across the membrane. But those substances which are not soluble in lipid bilayer, क्या कुछ पढ़ रही हैं? हाँ? Okay.
those substances which are not soluble in lipid bilayer, they require help of transmembrane protein for their diffusion across the membrane, and such type of diffusion is referred as facilitated diffusion. ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है जो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर मूव करने में सब्सटेंस को हेल्प कर रहे हैं, बट डिफ्यूजन है तो दैट मींस इट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, नाउ ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर स्पेसिफिक. मतलब अगर मान लो मेरे लिए कोई प्रोटीन है, मुझे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो आप में से किसी को नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा, सिर्फ मुझे ही करेगा. ठीक है, एंड इट शोज सैचुरेशन. सैचुरेशन का मतलब क्या, अगर मेरे जैसे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 50 प्रोटीन है और मेरे ऐसा 50 मॉलिक्यूल उन 50 प्रोटीन से बाइंड कर गया, तो प्रोसेस क्या हो गया, सैचुरेट हो गया. एंड एट सैचुरेशन स्पीड विल बी मैक्सिमम. 50 मॉलिक्यूल से बाइंड करने की इसकी औकात थी, 50 से बाइंड कर गया, इससे ज्यादा स्पीड हो ही नहीं सकता, तो एट सैचुरेशन स्पीड विल बी मैक्सिमम. ठीक है, एंड इट इज इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर एज इनहिबिटर बाइंड्स टू द प्रोटीन साइड चेन. क्या आपने एंजाइम पढ़ा होगा, तो एंजाइम में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि एक्टिव साइट होता है, तो ऐसे यहां पे भी बाइंडिंग साइट होता है. ठीक है, अब मान लो ये इससे बाइंड करने वाला है और इधर प्रोटीन साइड चेन था, यहां पे आगे कोई इनहिबिटर बाइंड कर गया, जिसके कारण क्या हुआ, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई हो गया, तो अब ये इससे बाइंड नहीं कर सकता है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा. ठीक है, थर्ड वन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. Those substances which are soluble in lipid bilayer, those substances which are soluble in lipid bilayer, which are soluble in lipid bilayer, can diffuse freely across the membrane, can diffuse freely across the membrane, but those substances which are not soluble in lipid bilayer, they require transmembrane protein for their transport across the membrane, These proteins are specific. स्पेसिफिक वर्ड का मतलब समझते हैं कि भाई जिसको ट्रांसपोर्ट करना सिर्फ उसी करेगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे शो सैचुरेशन, and at saturation speed is maximum. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर, as inhibitor binds to protein side chain. It is inhibited by inhibitor as inhibitor binds to protein side chain. ठीक है, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इसके लिए डेडिकेटेड चैनल्स होते हैं. ठीक है, ये जो चैनल्स होते हैं दे कैन बी गेटेड और नॉन गेटेड. मतलब क्या हुआ, या तो वहां पे दरवाजा लगा होगा मतलब रेगुलेटेड होगा, या फिर ओपन टाइप होगा, सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से अंदर बाहर. अगर गेटेड है तो एज पर रिक्वायरमेंट गेट ओपन होगा, गेट क्लोज होगा, और अगर गेटेड नहीं है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, अपना डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, जो ये चैनल बनाते हैं प्रोटीन उनको हम लोग कहते हैं पोरीन्स.
and such channels are present on outer membrane of mitochondria, plastid, and also on membrane of bacteria. Okay. For transport of water, there are dedicated channels which are found by a special type of porine referred as aquaporins. And so far, 8 different types of aquaporine have been identified. ऐसे नंबर तो बहुत बढ़ गया, लेकिन NCERT 8 लिखता है तो आप भी 8 याद रखें. ठीक है, write down. For facilitated diffusion, dedicated channels are present. Dedicated channels are present. These channels can be gated or non-gated. These channels can be gated or non-gated. Okay. Next point लिखिए. These channels are formed by special type of protein known as porins. These channels are formed by special type of protein known as porins. Special type of protein known as porins. Next one लिखिए. Such channels are present on outer membrane of. Such channels are present on outer membrane of mitochondria and plastid. Outer membrane of mitochondria and plastid, and also on membrane of bacteria. Also on membrane of bacteria. ठीक है. Next point लिखिए. For transport of water across the membrane, for transport of water across the membrane, dedicated channels are present, formed by aquaporins. Aquaporins. So far, 8 different types of aquaporins have been identified. Have been identified. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. पैसिव को-ट्रांसपोर्ट. ठीक है. मैं कुछ नहीं लिखा रहा, मैं डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ, आप बना लेना. बहुत अभी तक तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया और पूछेंगे भी क्या पता नहीं. ठीक है. 3 होता है इसमें. एक होता है सिम्पोर्ट, दूसरा होता है एंटीपोर्ट और तीसरा होता है यूनिपोर्ट. ठीक है. सिम्पोर्ट में क्या होता है, 2 सब्सटेंस आर मूविंग टुगेदर इन सेम डायरेक्शन, या तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, बट हमेशा साथ में मूव करेगा. एंटीपोर्ट में क्या होता है, 2 सब्सटेंसेस आर मूविंग टुगेदर बट ऑपोजिट टू वन अनदर. ठीक है. तो एक अंदर गया तो दूसरा बाहर आया. यूनिपोर्ट में क्या होता है, ये सब्सटेंस मूव्स इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर सब्सटेंस, तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर. बना लो, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा इसमें. हाँ हाँ, लेकिन यूनिपोर्ट को भी उसी में पढ़ते हैं. A molecule moves across the membrane independent of any other molecule.
ठीक है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अपना अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आना, तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी ने पूछा था, किसी ने पूछा था, किसी ने पूछा ना यूनिपोर्ट। हाँ ठीक है, ओके। राइट, नेक्स्ट हेडिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट विल डू इन नेक्स्ट क्लास। बहुत हो गया आज के लिए। तो नेक्स्ट वीक हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद हमारा आ जाएगा प्लांट वाटर रिलेशन, और उसके बाद फिर हो जाना चाहिए नेक्स्ट वीक खत्म है।